Good morning, student. Today in this class, I will be giving some tricks on how to find out the force on a charge moving in a magnetic field, how to find out the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay, student. Again, this is the revision class of magnetic effect of current. Again, I will give you the tips of the magnetic field. What happens is, student, the magnetic field lines, as you have already seen, the magnetic field lines forms closed loops. This is a very important property of magnetic field lines. Suppose this is the magnet and this is the north pole, this is the south pole. From here the lines of force will come and it will form a closed loop. Here it is moving out, here it is moving inside. This point is very important because, student, the magnetic poles cannot be separated. Similarly, if I have a current carrying conductor, see, this is a straight current carrying conductor, the magnetic field lines will again form closed loop like this. Now this direction, the direction of magnetic field is along the tangent drawn at that point. This is the direction, student. This is the direction of the magnetic field lines along the tangent. See, now this is a circle. How will you find out whose direction? Right hand thumb rule. This is the direction of current. I have to curl my fingers. The direction of curling will give the direction of magnetic field. So this is me. This is the direction, students. So this way the magnetic field is acting. This is the magnetic field is acting. This is magnetic field is acting like this. Means the magnetic compass needle will point along this side. If I place the needle here, magnetic compass needle will point along this side. If I place the compass needle here, that is the meaning, student. Or another meaning is the force on a unit north pole will be acting along this side. That is the meaning. Force on a unit north pole. This is a very important property of magnetic field lines, student. Now next property is two magnetic field lines can never intersect. They will never intersect, student, because if they intersect, say, suppose I draw one line of force like this and another lines like this. At this point it is intersecting. This means if I place the needle, the compass needle, it will point in both the direction, which is not possible. Because at a particular point, magnetic field will act along one direction only. That is why they can never intersect, student. These are some of the properties, student. Very important properties which you have to remember. Now current carrying conductor produces magnetic field. This is a straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor. How the magnetic field lines are circular, student. Similarly, as if you know, student, if the current carrying conductor is circular current carrying conductor, the magnetic field lines will be straight. Okay, student? The polarity rule, if this is the circle current carrying conductor, if I look from here, the direction is anti-clockwise. This means this side north pole will be formed and inside south pole will be formed. This is the polarity rule. See, anti-clockwise current. The coil which we are observing from the side, if the current is anti-clockwise, that side north pole and opposite side south is formed, student. Now, student, if the magnetic field lines are crowded at one place, say like this,
if you see this point A, I will say it has a strong magnetic field. If I take this point, here I will say weak magnetic field. So this is an example of a non-uniform magnetic field. Where the lines are very close, there the field is strong. Where the lines are far away, the field is weak. Magnetic field is weak, student. This you have to know, student. Now, student, a moving charge is equivalent to a current. You know what is current? It is the rate of flow of charge. Now, if a charge is moving charge is equivalent to current. And we already know current produces magnetic field. Current carrying conductor produces magnetic field. Already we know it. Now what happens, that is why when a charge, see student, learn the basic, charge Q moves in a magnetic field. चार्ज क्यू मूव्स, इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट? करंट आ गया वहां, वो करंट के इक्विवेलेंट है और वो किसी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में इट इज मूविंग, मतलब यहाँ पे दो मैग्नेट पास में आ गए, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। और जब दो मैग्नेट पास में आते हैं क्या होता है सबको पता है स्टूडेंट, देयर इज अ फोर्स व्हिच एक्सर्टेड, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। और इसीलिए स्टूडेंट क्या होता है जब चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, फोर्स विल एक्ट, ये इसका बेसिक है, फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग चार्ज on a moving charge in a magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है वहां पे फोर्स लगेगा स्टूडेंट, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। अब मैं आज इस क्लास में स्टूडेंट आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे उस फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अपन निकालेंगे। उसका जो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का वो इस फॉर्मूला से आता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो इस फॉर्मूला से आता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू तो आपको सबको पता है स्टूडेंट, चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वी है वेलोसिटी और कैपिटल बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलग अलग नाम है स्टूडेंट, इंटेंसिटी भी कहा जाता है इसे। ये बेसिकली हमें ये बताता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, या मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बताता है हमें। और ये जो थीटा है स्टूडेंट, इट इज द एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच का एंगल, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट। अब इसका डायरेक्शन, जो मेन बात समझना है हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला रूल, मैं आपको एक से ज्यादा रूल बताऊंगा स्टूडेंट। आप क्या करो, ऐसा लिखो, देखो इस तरह से लिखो, F इज इक्वल टू चार्ज, अब ऐसे ब्रैकेट में लिखो वेलोसिटी, ऐसे क्रॉस लिखो स्टूडेंट। ये V पहले लिखना है आपको, V मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला है, ऐसे आपको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसको मैं आई विल से फर्स्ट वेक्टर, और इसको मैं कहूंगा सेकंड वेक्टर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके स्टूडेंट, अब आप ध्यान दो, राइट हैंड palm रूल, राइट
हैंड पाम रूल। आपको स्टूडेंट क्या करना है, राइट हैंड को, बहुत ध्यान सुनना है स्टूडेंट, राइट हैंड को ऐसा रखना है, ऐसा मीन्स ये थंब एक तरफ और ये चारों उंगली एक तरफ और दोनों परपेंडिकुलर, ऐसा रख देना है आपको। अब जो पहला वेक्टर है वेलोसिटी, ये जो थंब है ये वेलोसिटी की तरफ रखना है, जिस तरफ भी चार्ज जा रही है उस तरफ इस थंब को रखना है, और ये जो चार उंगलियां हैं ये जाएगी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको हाथ को ऐसे रख देना है। अगर मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे जैसे लेफ्ट तरफ चार्ज जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ है, तो मैं हाथ को ऐसे रखूंगा। अब आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ऑन द पाम अपवर्ड, जैसे आशीर्वाद देते हैं, जिस तरफ आशीर्वाद का रेस निकलेगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से स्टूडेंट मैं आपको ध्यान दे रहा हूं, राइट हैंड को ऐसा कर लीजिए जैसे आशीर्वाद कोई देता है बड़ा, लेकिन कंडीशन क्या है, जो थंब है ये आपका जाना चाहिए पहला फर्स्ट वेक्टर की तरफ, और अपने इक्वेशन में पहला वेक्टर है वेलोसिटी, और दूसरा जो ये वाले चार उंगली ये जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए मान लेते हैं चार्ज इस तरफ जा रहा है बोर्ड के, पॉजिटिव चार्ज, याद रखना स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज के लिए है ये रूल, ये है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऐसा है स्टूडेंट। अब मैंने आपको क्या कहा था, हाथ ऐसा करिए, ये वेलोसिटी की तरफ जाना चाहिए, तो वेलोसिटी इस तरफ है, तो देखिए ये थंब मेरा वेलोसिटी तरफ चला गया, और ये चार उंगली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ। अब आप आशीर्वाद किस तरफ जा रहा है, बोर्ड के बाहर, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटसाइड द बोर्ड। दिस इज डायरेक्शन स्टूडेंट, ये पहला रूल हो गया, राइट हैंड पाम रूल। अब मैं दूसरा रूल बता रहा हूं आपको स्टूडेंट, रूल नंबर 2, इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। या इसका और अच्छा नाम है मैक्सवेल, राइट हैंड भी चलेगा स्टूडेंट, मैक्सवेल रूल भी इसको कहते हैं। आप क्या करो, स्क्रू को यहां पे फिक्स करो इस चार्ज के ऊपर। अब आपको स्क्रू को रोटेट करना है फ्रॉम फर्स्ट टुवर्ड सेकेंड, ध्यान देना स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग, द स्क्रू हैज टू बी रोटेटेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, screw has to be rotated from first vector towards second vector। अब देखिए मैं यहां स्क्रू को रख दिया, मैं पहले से दूसरे, पहला वेक्टर ये है स्टूडेंट, ये दूसरा है, पहले से दूसरे की तरफ, मतलब मेरा स्क्रू ऐसा घूमेगा, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और आप जानते होंगे जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो स्क्रू बाहर आएगा। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्क्रू, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्क्रू गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है राइट हैंड स्क्रू रूल स्टूडेंट, इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। मैक्सवेल, अगर राइट हैंड नाम ही माने कि हमेशा राइट हैंड से अपन स्क्रू जरूरी रोटेट करे, इसलिए इसका नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। दो रूल हो गए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट थर्ड रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 स्टूडेंट, रूल नंबर 3 है स्टूडेंट, ये भी राइट हैंड थंब रूल ही बोलते हैं रूल नंबर 3 को, राइट हैंड थंब रूल। अब थोड़ा सा इसमें चेंज किया स्टूडेंट, है तो वही सेम राइट हैंड, लेकिन अब आपको क्या करना है, हाथ को तो ऐसे ही रखना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, ये जो चार फिंगर्स हैं
इसको आपको रोटेट करना है, घुमाना है, कर्ल करना है पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ। फिर से स्टूडेंट हाथ को ऐसे रखना है और ये जो 4 फिंगर है ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसको रोटेट करना है पहले से दूसरे की तरफ। जिस तरफ ये थंब पॉइंट कर रहा है वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वेलोसिटी है और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं पहले अपनी ये 4 उंगली को वेलोसिटी की तरफ करना है मुझे, और उंगली को ऐसा करना है कि दूसरी की तरफ मोड़ सके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तरफ मैं मोड़ सकूं। मैं अंदाज से अपने आप नहीं कर सकता। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो मुझे उंगली को 4 उंगली को ऐसा रखना पड़ेगा। पहले तो हाथ को ऐसा रखो, देखो अब मैं उंगली को 4 मोड़ रहा हूँ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, पहले से दूसरी की तरफ। मेरा थंब किस तरफ आ रहा है स्टूडेंट, देखो बाहर तरफ। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब आपको कर्ल करना है, कौन से, इन 4 फिंगर्स को, कर्लिंग द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर to second vector. Then direction of thumb gives direction of force. समझ में आ गया स्टूडेंट? हाथ को ऐसा रखना है और ये उंगली को टर्न करना है पहले से दूसरे की तरफ। पहला है वेलोसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह भी थंब जाएगा, थंब हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्टूडेंट। ये रूल नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो बुक में एनसीईआरटी में दिया वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट के 3 फिंगर्स आपको ऑलरेडी पता होगा। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, यहाँ पे सेंट्रल फिंगर चार्ज आएगा, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये आएगा थंब थ्रस्ट फोर्स आएगा। अब देखिए इसमें आप अप्लाई करिए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ है स्टूडेंट, देखो मेरा ये वाला उंगली ऊपर चला गया, करंट इस तरफ है, देखो थंब बाहर आ रहा है, थंब है डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट देखिए एक ही उसके मैंने आपको 4 रूल बता दिए, जहां पे जो रूल इजी लग रहा है स्टूडेंट दैट रूल यू अप्लाई, तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपके लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें डायरेक्टिव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं। अब थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं स्टूडेंट। सपोज स्टूडेंट, हाँ एक बात और याद रखना स्टूडेंट, अगर चार्ज पैरेलल मूव कर रहा है, charge is moving parallel to magnetic field, तब जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज उसी तरफ घूम रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है स्टूडेंट, तो फोर्स क्या आ जाएगा 0, या चार्ज इस तरफ भी आए तब भी फोर्स 0 आएगा। तो ये जो 4 रूल बताए स्टूडेंट, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है फोर्स उसका उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब स्टूडेंट एक प्रैक्टिस करते हैं इस रूल का। सपोज स्टूडेंट में चार्ज ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है स्टूडेंट, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट। तो आपको जो नोटेशन मैंने बताया वो ये याद रखना है, ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर।
तो सबसे आसान तरीका है स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू। आप एक स्क्रू के यहाँ रखो और पहले से दूसरी की तरफ घुमाओ। देखो स्क्रू यहाँ रखा है, स्क्रू ऐसे घूमेगा, मतलब ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज। दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में स्क्रू अंदर जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनसाइड आ गया स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनसाइड द बोर्ड। इसको रूल से आ गया स्टूडेंट। अब आप चाहो तो बाकी रूल टेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट। राइट हैंड पाम, आशीर्वाद वाला रूल कहते हैं, राइट हैंड पाम। तो इसमें राइट हैंड पाम में याद रखना स्टूडेंट, ये वाला पहले वेक्टर की तरफ जाना चाहिए। तो ये वेलोसिटी तो यहाँ ऊपर है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऊपर है तो ऐसा हाथ जाएगा मेरा, लेकिन ऐसे रखने से मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तरफ जाना चाहिए। मतलब मेरे को हाथ ऐसा करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, ये वेलोसिटी ऊपर, ये वाला उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये देखो स्टूडेंट। अब मेरा जो आशीर्वाद है वो अंदर तरफ जा रहा है, या परपेंडिकुलर नॉर्मल अपवर्ड, तो तब भी फोर्स आ गया इनसाइड, फोर्स इज इनसाइड द स्टूडेंट। ये हो गया स्टूडेंट। अब एक और रूल स्टूडेंट जो मैंने राइट हैंड वाला बताया था, कर्लिंग रूल, राइट हैंड कर्ल। उसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको हाथ तो ऐसे ही करना है, लेकिन ये जो चार फिंगर इसको पहले से दूसरे की तरफ टर्न, रोटेट, कर्ल करना है इसको, जिस तरफ थंब जाएगा वो फोर्स। अब पहला वेक्टर वेलोसिटी है, अब मैं कैसे रखूं कि इस तरफ मुझे ऐसे उंगली को टर्न करना। देखिए स्टूडेंट, ऊपर वेलोसिटी, इसको टर्न करूंगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट। देखिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मेरा थंब अंदर जा रहा है, थंब इज इनसाइड। तो थंब अंदर जा रहा है मींस स्टूडेंट द फोर्स का डायरेक्शन अंदर है। और एक और जो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो वाला भी देख लेते हैं स्टूडेंट। सेंट्रल फिंगर करंट है स्टूडेंट, देखो सेंट्रल फिंगर चार्ज जा रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, थंब फिर से देखो अंदर जा रहा है स्टूडेंट, इट इज गोइंग इनसाइड। फिर से आ गया अपना डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया स्टूडेंट। और इसमें स्टूडेंट एक और बात जो मैंने यहां लिखी है, मूविंग पैरेलल फोर्स 0 है, और ये फोर्स स्टूडेंट मैक्सिमम रहेगा, दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम when charge moves perpendicular to magnetic field। चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स मैक्सिमम रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्टूडेंट QVB। अब स्टूडेंट थोड़ा कॉम्पिटिटिव के उससे एक और आपको इसी का मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता दूं। फर्स्ट, चार्ज एंटर्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब V और B पैरेलल हैं, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होगा स्टूडेंट, पाथ को दूसरा फिजिक्स में कहते हैं ट्रेजेक्टरी, वो होगा स्ट्रेट लाइन, चार्ज स्ट्रेट चली जाएगी बिकॉज फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा स्टूडेंट, चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर का साइन है स्टूडेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है परपेंडिकुलर। इसमें जो चार्ज का जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर, चार्ज सर्कल में घूमने लगेगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है, ट्रैप द चार्ज, तो चार्ज को ट्रैप कर लेते हैं, एक ही जगह में चार्ज घूमने लगती है स्टूडेंट। चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, पाथ उसका हो जाएगा सर्कुलर। और तीसरा है स्टूडेंट एक और, अगर मान लेते हैं चार्ज ऐसे एंटर करता है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज मेकिंग सम एंगल, मैग्नेटिक फील्ड का थीटा एंगल बनाते हो, चार्ज एंटर करता है, पॉजिटिव चार्ज।
तो ऐसे केसेस में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो चार्ज है इसका जो पाथ रहता है, चार्ज एंटर्स मेकिंग सम एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें स्टूडेंट जो पाथ होता है उसको कहते हैं हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग जैसा, चार्ज इस टाइप से आगे भी जाती है, सर्कल में भी घूमती है, इसको हेलिकल पाथ कहते हैं। क्योंकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आगे भी बढ़ाता है और एक कंपोनेंट उसको टर्न करवाता है। तो ये 3 केसेस हैं स्टूडेंट, चार्ज स्ट्रेट भी निकल सकता है, चार्ज सर्कल में घूम सकता है और चार्ज हेलिकली भी घूम सकता है। हेलिकल मतलब स्प्रिंग जैसा पाथ, चार्ज ऐसा चलने लगता है स्टूडेंट। तो आज अपन स्टूडेंट वी हैव लर्न द ट्रिक्स, कैसे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी केस में आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है सरप्राइज टेस्ट का। आपको क्लास के बाद एक सरप्राइज टेस्ट देना है। कुछ क्वेश्चन उसमें इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ाया गया वीडियो में। तो स्टूडेंट गेट रेडी टू गिव द सरप्राइज टेस्ट ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक एब्रेसिव करंट। कुछ क्वेश्चन जो पढ़ाए नहीं गए हैं या कॉन्सेप्ट वो आएंगे, कुछ क्वेश्चन वीडियो से आएंगे जो आपको पढ़ाया गया है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट टुडे फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।